Well, those are the headlines at this hour. I'm Shireen Bhan, and you're watching a special edition on the latest in India's battle against the coronavirus pandemic. Well, let's begin with a snapshot of the global situation. The total number of confirmed cases have now crossed 50 million on the back of a record number of new cases across several countries. Over 1.25 million people have succumbed to the virus so far. Europe, with over 42,000 new cases in the late 24 hours, remains the epicenter of the pandemic. The continent alone accounts for over 70% of the new cases recorded across the world. Meanwhile, the US has become the first nation to register over 10 million COVID-19 cases. Medical experts are warning that the outbreak across the country is worsening. They say it could lead to a devastating winter. According to data from Johns Hopkins University, the US has recorded over 126,000 new cases on both Friday and Saturday. Back home, active cases fell by almost 3,000 in the last 24 hours. This is the 37th day in a row that active cases have fallen across the country. New cases stood at over 45,800, staying below 50,000 for the second straight day. But the decline in active cases and the new additions also comes on the back of much lower testing. The single-day testing stood at over 8.3 lakh versus 12 lakh tests done on the previous day. However, overall, the picture looks positive, with the recovery rate rising to 92.56% and COVID positivity rate slipping below 6%. As of now, India's total cases stand at 85.5 lakh, active cases at over 5.09 lakh, recoveries at 79.1 lakh, and deaths at 1.2 lakh. Well, let's turn our focus to Delhi now. The state has reported 7,745 coronavirus cases in the last 24 hours. That is the highest ever single-day spike. This is the second time that the total number of coronavirus cases per day has breached the 7,000 mark in Delhi. According to the data from the Delhi government, the COVID positivity rate now stands at over 15%. This compared to the close to 6% national positivity rate. Joining us now is Delhi's Health Minister Satinder Jain. He has admitted that this is the third COVID wave and it is probably in its peak in the national capital. Mr. Jain, many thanks for joining us here on CNBC TV 18. सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हम दिल्ली में एक स्पाइक देख रहे हैं, एक सर्ज देख रहे हैं नए इन्फेक्शंस का, national picture अब बहुत अलग है. For the 37th day, we continue to see a decline in active cases. Positivity rate is down to 6% versus Delhi's 15%. Unlock is across the country. The festive season is across the country. What is going on in Delhi specifically that is leading to this kind of a spike? We seem to have lost that line with the Health Minister of Delhi. We'll just reconnect with him and get you his take. But that is the picture on your screens. That's the situation for Delhi, a positivity rate of over 15%. Remember, the first peak in Delhi was around June, specifically the 23rd of June. Then we saw the second wave, which coincided with the wave that we saw across the country, which was in September. And what we are now seeing is a third wave in Delhi, with cases breaching the 7,000 mark for the second straight day. So that's the picture, 7,745 positive cases. The government has stepped in and said that they will be setting up additional infrastructure both across government hospitals as well as private hospitals to try and ensure that there is adequate bed capacity. But this is a cause of concern as far as the administration goes. Also, it's not just the number of cases, but it's also the number of deaths in this month that has gone up significantly. The average death in Delhi on a daily basis, the death toll is about 60 in the month of November so far. And if you can see that on your screens, in the last 24 hours, 77 deaths were recorded in Delhi. So it will be important to get an assessment of what is leading to that high mortality rate in Delhi this month and what the government plans to do. We will take a break, but we'll be back with the Health Minister of Delhi, Satinder Jain, after this break. You
are watching our special edition here as we take stock of the COVID pandemic. We're discussing the sharp spike in Delhi's COVID cases. Joining us now is Delhi's Health Minister Satinder Jain. Mr. Jain, दिल्ली में जिस प्रकार का हम स्पाइक देख रहे हैं, जिस प्रकार का हम सर्ज देख रहे हैं कोरोना वायरस केसेस में, what are you attributing this to? क्योंकि अगर हम अनलॉक की बात करें तो देश भर में अनलॉक का माहौल फिलहाल है. फेस्टिव सीजन की बात करें तो फेस्टिव सीजन देश भर में है, लेकिन 37th डे एक्टिव केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं. नेशन वाइड positivity rate is now down to 6% versus 15% in Delhi. Is there anything specific in Delhi that is causing this surge? दो तीन चीज़ें हैं. एक तो दिल्ली में जो टेस्टिंग है, टारगेटेड टेस्टिंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. वी आर डूइंग, मतलब जो भी एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, जो भी हमें कॉन्टैक्ट मिलता है तो उसके 5-10 या जो भी पॉजिटिव है उसके सारे फैमिली को सबको हम टेस्ट कर रहे हैं. तो बंच में काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं, एक साथ पूरे परिवार पॉजिटिव मिल रहे हैं. साथ ही साथ देखो, अनलॉक का तो फ़र्क है ही. अनलॉक जो हुआ फाइनल अनलॉक के बाद, तो दिल्ली के अंदर जैसे जो प्राइवेट ऑफिस थे काफ़ी बंद थे पहले, तो वो एकदम स्टार्ट हुए. शॉपिंग वगैरह भी बंद थी तो वो भी स्टार्ट हुए. तो उसका भी असर है कि काफ़ी लोग एकदम से मोबाइल हुए. और ख़ासतौर से अपर मिडिल क्लास के लोग बिल्कुल घरों से नहीं निकल रहे थे शुरू में. तो जो कि पिछले लगता है दशहरे के आसपास से लोगों ने निकलना स्टार्ट किया है. तो उसका भी फ़र्क है. थोड़ा सा सर्दी भी थोड़ी स्टार्ट हुई है, तो ये कंबाइंड इफेक्ट नज़र आ रहा है. अच्छा, आप कह रहे कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है. सर, अगर आप थोड़ा डिटेल्स देंगे डेथ्स के ऊपर, क्योंकि डेथ्स में भी काफी स्पाइक हुआ है. डेली डेथ टोल इज ट्रैकिंग अबव 60 नाउ ऑन एन एवरेज थ्रू द मंथ ऑफ नवंबर. तो वो किस वजह से? इज इट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एडिक्वेट हॉस्पिटलाइजेशन, लेट टेस्टिंग, कोमॉर्बिडिटीज? किस वजह से डेथ टोल में इतनी स्पाइक आ रही है? देखिए, सारे जो डेथ है ना, मैक्सिमम डेथ ओल्ड एज की वजह से या कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हो रही है. मतलब मैक्सिमम डेथ यही है कि 60+ लोग थे या सीवियरली कोमॉर्बिड थे तभी डेथ हो रही है. और जहाँ तक डेथ की रेशो की बात करें तो 10 डेज की एवरेज है वो 1% से नीचे है. लगातार पिछले मतलब लगभग 1 महीने से 1% से नीचे चल रही है. एंड 1% से अगर नीचे डेथ रेट है तो उसको ठीक ही माना जा रहा है. आप कह रहे हैं कि ठीक माना जा रहा है, लेकिन कल हमने जैसे देखा इन द लास्ट 24 आवर्स 77 डेथ्स बीइंग रिपोर्टेड इन द सिटी. व्हाट इज द प्लान नाउ, मिस्टर जैन? आई नो दैट द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सेड दैट यू विल सेट अप अनदर 600 बेड्स अक्रॉस बोथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स. पर जिस प्रकार से केस राइज हो रहा है, आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है? क्योंकि ऑलरेडी फिर से ये फीडबैक आ रहा है कि बेड कैपेसिटी स्पेशली एज फार एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर कंसर्न्ड वहां पे अवेलेबल नहीं है. देखिएगा, हमने 500 बेड दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में बढ़ाए हैं. 585 बेड्स हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बढ़ाए हैं. और साथ ही साथ हमने केंद्र सरकार को भी, कल मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है कि भाई केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स में भी कुछ बेड बढ़ाए जाएं विद आईसीयू बेड्स. तो उसके लिए हम तीनों जगह पर बढ़ा रहे हैं. और जहाँ तक आईसीयू बेड्स की प्राइवेट में बात करें, उसके लिए दिल्ली सरकार ने 10 सितंबर को ऑर्डर दिया था कि जो आईसीयू बेड्स हैं 80% विल बी रिजर्व फॉर द कोविड. बट उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ स्टे दे दिया था. तो दिल्ली सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है. उसका लगता है कल परसों में कुछ फैसला आएगा. जी, आपने एक स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में टू ओवरटर्न द हाई कोर्ट्स ऑर्डर. बट मिस्टर जैन, that can't be the answer because COVID तो है and you have to take care of COVID patients, but there are other serious patients as well who may not necessarily be COVID patients. So where are they supposed to go, sir, if they require ICU beds? नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, उसका रीज़न बता देता हूँ आपको. देखिएगा, आईसीयू के अंदर दो तरह से पेशेंट जाते हैं. एक जाते हैं प्लान्ड सर्जरीज़ की वजह से और दूसरे जाते हैं इमरजेंसीज़ की वजह से. प्लान्ड सर्जरीज़ जो हैं 90% के करीब जो आईसीयू की स्ट्रेंथ होती है वो प्लान्ड सर्जरीज से भरी होती है. और 10-12% लोग ऐसे होते हैं जो कि इमरजेंसी में आते हैं. जब कोविड स्टार्ट हुआ था मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3-4 महीने के लिए सभी हॉस्पिटल्स की प्लान्ड सर्जरीज बंद थी. तो अभी अगर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए प्लान्ड सर्जरीज को पोस्टपोन कर लिया जाए तो इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और हमने 80% ही बोला, सभी अस्पतालों में नहीं बोला, हमने कुछ अस्पतालों में बोला. टोटल आईसीयू बेड्स की जो कैपेसिटी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तब भी नॉन कोविड के लिए रहेगा. एंड कोविड इज ए इमरजेंसी दैट कैन नॉट बी प्लान्ड. जो इमरजेंसी के अंदर आएगा, जो भी आदमी को अगर कोविड में सीरियस है, उसको आईसीयू की जरूरत है, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते कि भाई आप अपनी सर्जरी 15 दिन के बाद करा लीजिए. फॉर एग्जांपल
किसी को अपना नी रिप्लेसमेंट कराना है तो नी रिप्लेसमेंट कैन बी डन आफ्टर 2 वीक्स, बट कोविड का जो आईसीयू पेशेंट है उसको 2 हफ्ते के बाद नहीं बुला सकते हैं। मिस्टर जैन, इज देयर एनी प्लान टू ब्रिंग इन एनी रिस्ट्रिक्शंस? आपने कहा कि अनलॉक की वजह से जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का मूवमेंट है वो काफी अब फेस्टिव सीजन में बढ़ गया है। इज देयर एनी प्लान टू ब्रिंग इन एनी रिस्ट्रिक्शंस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पेसेस, गिवन द काइंड ऑफ राइज इन केसेस दैट वी आर सीइंग? श्रेन जी, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास है दे आर क्वाइट एजुकेटेड, उनको मुझे लगता है थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है कि अब बाहर तो जाइएगा पर मास्क लगा लीजिएगा। अगर इस बात को थोड़ा सा वो ध्यान रख लें, कुछ लोग 90% लोग ध्यान कर रहे हैं पर कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है कि सब लोग अगर मास्क लगा के जाएँ तो मुझे लगता है जो पहले लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी उसकी ज़रूरत नहीं है। पिछले 8 महीने में सबने दुनिया भर में ये सीखा है कि जितने भी बेनिफिट आपको लॉकडाउन के मिल रहे हैं उतने तो आपको मास्क लगाने से भी मिल सकते हैं। तो सभी लोगों को ये मानना चाहिए कि मास्क जरूर लगाना चाहिए, खासतौर से जब भी बाहर जाएं। पब्लिक के अंदर जाते हैं तो अगर 2 लोग हैं दोनों ने मास्क लगाया तो इसके फैलने के बहुत कम चांस हैं। अगर आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं और वहाँ पे सबने मास्क लगाया तब भी चांस बहुत कम हो जाते हैं, परंतु अगर उसमें से किसी एक ने नहीं लगाया और वो काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। So many states like the state government of Rajasthan has brought in a law to make it mandatory to wear a mask. Is the Delhi government considering any such thing, any such move? नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले ही मैंडेटरी किया हुआ है कि पब्लिक स्पेस के अंदर मास्क लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज 500 रुपये का फाइन है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम पे 1000 रुपये का फाइन है। तो दिस इज ऑलरेडी मैंडेटरी इन दिल्ली फॉर लास्ट 4-5 मंथ्स। अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएंगे, आप अगर गाड़ी में भी जा रहे हैं और एक से ज़्यादा आदमी गाड़ी के अंदर है, अगर 2 लोग भी हैं तो मास्क दोनों को लगाना है, अगर सिंगल है तो कोई बात नहीं है। घर से बाहर आप जाते हैं तो आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएंगे तो मास्क लगाना जरूरी है, ये दिल्ली में ऑलरेडी है। जी, मास्क लगाना जरूरी है एंड इट इज ऑलरेडी मैंडेटरी इन दिल्ली। आपने टारगेटेड टेस्टिंग की बात की मिस्टर जैन, तो व्हाट इज द प्लान नाउ इन टर्म्स ऑफ हाउ मच यू आर लाइकली टू हाइक द टेस्टिंग एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी गोइंग टू बी? Delhi is testing significantly higher, although you're also using a lot more of the antigen tests versus RT-PCR. What is the strategy now going to be on testing? नहीं, देखिएगा RT-PCR टेस्ट अलोन वी आर डूइंग मोर देन 50,000 टेस्ट पर डे, और जो रैट टेस्ट हैं वो एडिशनल किए जा रहे हैं। आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि जो नेशनल एवरेज है, नेशनल एवरेज सारे देश के अंदर रैट एंड RT-PCR मिला के किया जाता है। दिल्ली का जो एवरेज है पर मिलियन पूरे देश के एवरेज से 3-3.5 गुना ज़्यादा है। तो हम RT-PCR के अलावा जो रैट कर रहे हैं वो एडिशनल मान सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसका रीज़न यही है कि इंस्टेड के हम उसको कि भाई नंबर कितना आता है उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं कि नंबर कोई भी आए, परंतु इसको बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हमारे को हर आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो भी पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव है उसको आइसोलेट करेंगे तभी ये रुकेगा। तो कितना आप अब टेस्टिंग अग्रेसिवली बढ़ाने की सोच रहे हैं? व्हाट इज द प्लान गोइंग टू बी फ्रॉम हियर ऑन? जब हमने जो टेस्टिंग है हमारी 15-16 हज़ार टेस्टिंग पर डे हुआ करती थी, पिछले 2 महीने से हमने टारगेट लिया था कि हम 40,000 से ज़्यादा करेंगे, और लगातार 1.5-2 महीने से हम 40,000 से ऊपर ही कर रहे हैं, उससे कम अभी तक नहीं गए, एक दिन भी नहीं गए हैं। 40,000 से लगातार हम ऊपर चल रहे हैं, कभी 50,000 है, 60,000 है। तो इतनी बड़ी अब हो क्या रहा है कि जब टेस्ट करने की बात आती है तो कहते हैं अभी 3 दिन पहले ही कराया है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, दिल्ली की पॉपुलेशन का लगभग 25% लोगों का टेस्ट हो चुका है, 24% के करीब लोगों का टेस्ट हो चुका है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में टेस्ट हो चुके हैं। तो अब तो वो वाली सैचुरेशन वाली लिमिट भी आती जा रही है कि लोग कह रहे हैं 1 हफ्ता पहले टेस्ट हुआ है, 3 दिन पहले टेस्ट हुआ है। तो हमारे को टेस्ट हम पूरी एग्रेसिवली कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी हमारा टारगेट है कि 40,000 से ऊपर ही रखेंगे। Okay, daily testing of more than 40,000, but that's a mix of RT-PCR and antigen. But Mr. Jain, आपने टेस्टिंग की बात की, पर ऐसे भी कई केसेस आए हैं। अगर हम एयर इंडिया के जो फ्लाइट्स जो टेम्पररी सस्पेंड किए गए हैं वुहान के लिए, हांगकांग के लिए, उसमें ये फीडबैक आया है कि पीपल हैव अराइव्ड विद negative test reports but are testing positive on arrival. Is there any feedback that the Delhi government has got with respect to any discrepancies with labs and the testing certificates that are being given out? टेस्टिंग के अंदर ना अभी आप टेस्ट कराइएगा, हो सकता है 6 घंटे बाद कराएं तो आपका पॉजिटिव हो सकता है,
क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 4 से 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब आप इन्फेक्ट होने के बाद वायरस तो आपकी बॉडी में चला गया, बट टेस्ट में वो पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, इट टेक्स टाइम। तो ये कहना कि भाई आप जब गए थे, आपने टेस्ट कराया, मान लो टेस्ट कराने के आप 6-8 घंटे बाद फ्लाइट ली या 12 घंटे बाद फ्लाइट ली आपने, फ्लाइट में 6-8-10 घंटे लगे, तो इससे हो सकता है 18 घंटे का गैप आ गया, 20 घंटे का गैप आ गया। तो दोबारा टेस्ट करने पे अगर वो पहले से किसी के संपर्क में आया था तो इंक्यूबेशन पीरियड उसका हो सकता है उस टाइम पे ख़त्म हो गया हो, तो पॉजिटिव आने के चांस रह सकते हैं। You haven't got any feedback on any discrepancies that the government is looking into as far as any particular labs are concerned? देखिएगा, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जो पॉजिटिविटी है, आप जो RT-PCR टेस्ट है, इसका भी 100% पॉजिटिविटी रेट नहीं है, स्पेसिफिसिटीज़ की भी 70% के आसपास ही है। तो ये कहना कि भाई जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें से किसी का भी बचेगा नहीं, तो ये कहना बहुत संभव नहीं है। अभी तक ऐसा कोई टेस्ट निकला नहीं जिसमें 100% टेस्ट पता चल सके। अब आपने कहा कि बेड कैपेसिटी इंक्रीज की जा रही है बोथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, रन बाय द सेंटर एज वेल एज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स. Are there any other shortages being reported? Is oxygen a concern at this point in time? Because we did see when cases were spiking in states like Maharashtra and cities like Mumbai, there was a problem with oxygen. Is there any problem like that being seen in Delhi given the case rise? नहीं, दिल्ली के अंदर बाकी सप्लाईज़ की हर चीज़ की हमने तैयारी ठीक से की हुई है। और ये जो आईसीयू बेड्स, देखो टोटल 8000 बेड आज भी इस टाइम पर अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में कोविड डेडिकेटेड। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों डिमांड ज़्यादा है? क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं और बहुत सारे लोग जो बाहर से भी आ रहे हैं, वो एफिलेंट क्लास से बाहर से जो आ रहा है, वो कई बार ऐसा होता है एफिलेंट क्लास से, तो दे प्रेफर टू गो टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल। तो दिल्ली के अंदर अब जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बहुत सारे लोगों को इतने सालों से आदत है तो वो प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आईसीयू की दिक्कत है। बाकी बेड अवेलेबिलिटी जहाँ तक है, आज भी हमारे पास 8000 से ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं। और मुझे लगता है जो हमने SLP दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, 1-2 दिन में शायद उसके बारे में फेवरेबल डिसीजन आएगा तो वो कमी भी दूर हो जाएगी। तो कितनी शॉर्टेज फिलहाल देखी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स को लेके? देखिएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सितंबर के स्टार्टिंग में हमने लगभग टोटल पूरी दिल्ली में 1500 आईसीयू बेड बढ़ाए थे। आज 3200 आईसीयू बेड्स हैं जिसमें से लगभग 700-750 अवेलेबल हैं। तो अगर 1000 बेड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो मुझे लगता है बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा और अगले 2-3 वीक्स में मुझे लगता है इसकी कोई दिक्कत रहेगी नहीं। तो ये जो बेड्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं आप, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोर्ट ऑर्डर और इज दिस बिकॉज यू आर गोइंग टू एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, देखिएगा, हमने ऑर्डर दिया था बेड्स बढ़ाने के लिए, कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था। हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर 33 जो दिल्ली के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं उनका 80% रिजर्व कर दिया जाए कोविड आईसीयूज़ के लिए, तो क्योंकि वो इमरजेंसी केसेज हैं, और प्लान सर्जरी को थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर लें और जो इमरजेंसी केसेस है उसके 20% बेड रख लिए जाएं। तो वही मैं आपसे पूछना I understand that, sir. That is why I'm trying to ask you that when you say that you expect this to ease in the next few weeks, is that because you believe that a Supreme Court order may be favorable and may reimpose that cap, or is it because you're actually going to enhance capacity of ICU beds further? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक ही तरीका सरकार आदेश दे सकती है। उस आदेश को अगर हाई कोर्ट ने रोक दिया है, जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक तो बेड इंक्रीज नहीं हो सकते हैं। बेड इंक्रीज करने का तरीका यही है कि सरकार ने आदेश 10 सितंबर को दिया था, आज हम 9 नवंबर में बैठे हैं, तब से वो नहीं बढ़ पाए हैं। उससे ऑर्डर के आने से पहले जितने बढ़ गए थे और हाई कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद वो बेड नहीं बढ़े हैं। और मैं सोचता हूँ कि फेवरेबल डिसीजन दिल्ली के फेवर में आएगा तो ये बेड्स तुरंत बढ़ जाएंगे। एक आखिरी सवाल मिस्टर जैन, आपने कहा कि मास्क इज इक्विवेलेंट टू एट दिस पॉइंट इन टाइम ट्रीटिंग दिस पैंडेमिक इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आप रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं, बट do you believe that if this kind of case rise continues, you may have to bring in some restrictions? देखिए, अभी 3-4 दिन देखते हैं,
अगर उसके बाद पता लगेगा, पर मुझे लगता है कि लोग इसको फॉलो करेंगे। अभी लोगों को डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, फिर से लोगों के अंदर थोड़ा सा फियर थोड़ा सा भी आएगा तो लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आप अपने चारों तरफ देखिएगा, लोगों ने महीनों तक घरों से बाहर नहीं निकले थे, अब वो बाहर निकल रहे हैं तो मतलब बीच का रास्ता निकाल सकते हैं ना, कि एकदम से घर से बाहर ही नहीं निकले। अब निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलिएगा, निकलने से मना नहीं है, अब मास्क लगा के बिना निकलेंगे वो बड़ा खतरनाक है। तो मुझे लगता है लोग इसको समझ लेंगे, और जैसे आपने इस तरह का प्रोग्राम किया, तरह तरह के टीवी पे प्रोग्राम आ रहे हैं, लोग समझेंगे इस बात को। ऐसा नहीं है दिल्ली के लोग एजुकेट होंगे। अब दिल्ली में लोगों ने मिलके डेंगू को हराया इस साल, पिछले साल भी हराया था, इस साल एक भी डेथ नहीं हुई, तो इसको भी हम पीछे मतलब जनता के साथ मिलके जरूर इसके साथ लड़ेंगे। और ये जो मास्क ना लगाने की कुछ लोगों के अंदर आदत पड़ी है, इसको हम जरूर ठीक कर पाएंगे। Mr. Jain, has there been a review meeting between the Delhi government and the Home Ministry at the centre on the current situation? अभी 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ, मैं भी मीटिंग में था, और 3 दिन पहले ही मीटिंग हुई है। वहाँ पर भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स में कुछ बेड बढ़ाए जाएं और विद आईसीयू बेड्स। Mr. Jain, thanks very much for joining us, the Health Minister of Delhi. We wish you the very best of luck as the capital deals with its third wave, with cases tracking more than 7,000 now for the last few days. And the hope is that it will start. This is the peak, and maybe we will see the cases starting to decline. But it's very important that you invest in personal protection, and masks, of course, are crucial. We will take a break. There's a lot more to come. Don't go anywhere. We're back in a minute on CNBC TV 18.